Okay, so today what we are going to see first is a very important concept that is used in inheritance, right? It's a very important concept, right? Which you guys need to know. So what I'll do is I'll create a new project. I'll call it inheritance 4. Right, now in this inheritance 4 what I'll do is I'll create few packages. I'll say new package. Standard is app, in which we have our main, right? Then I'll create another package. I'll call it maybe something like test. Right, now inside test what I'll have is I'll have two classes. I'll call one as base, and I'll have another class, I'll call it derived. Both are present in the same package. Okay, now inside base what I am going to do is I am going to create a function, right? I'll say public void fun base, and inside this fun base what I'll do is I'll say system.out.println I'll say in fun base. In fun base, right? And I'll have another function which will be public void fun. In this again I'll have a system.out.println. In it I'll say in base fun, right? Then I'll go to my derived class, I'll extend it from base, so I'll say public class derived extends base, right? Now in this what I'll do is I'll create again two functions. I'll say public void fun derived, in which I'll just have a sysout, in which I'll say in fun derived. Then I'll have another function public void fun. In this I would simply say sysout in derived fun. Now few important things that we need to note is कि this fun derived जो है ये derived class में function है, fun एक derived class में function है. In the same way in your base class I have एक fun base, but this name of this function it is repeating. Name of the function जो है it is repeating, right? And entire signature is repeating. It is public void fun in base, it is public void fun in derived as well, right? Now as we know that derived class के objects they can access the members of the base class, public members of the base class. अब ये सारे public ही है, right? So I'll create a class app to test this thing, right? And inside this I'll have public static void main string array args,
I'll import test dot star so that I get both the classes here, right? And I'll create an object of derived class. So I'll say derived d1 equals to new derived. And I call d1 dot fun, then I'll call d1 dot fun derived जो कि derived class का standalone function है, and I'll call d1 dot fun base. ठीक है. So what I am trying to do here is I am having an object of derived class and I am trying to call two functions which are in derived class and one function which is in the base class, right? Because derived class के objects they can access the public members of base class. अब base class में also there is a fun and in derived class also there is a fun. Now can you guys tell me, right, when this statement is executed d1 dot fun, right, which particular function would be called, right? The options are like only base one will be called, or the option is only the derived one will be called, or the option is both base as well as derived class के functions will be called. Did you guys get the question? क्वेश्चन समझ में आया? एक बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है. डिराइव्ड क्लास एक्सटेंड्स बेस, राइट? नाउ वी हैव टू फंक्शंस इन द बेस क्लास. वन इज फन, पब्लिक वॉइड फन, अनदर इज पब्लिक वॉइड फन बेस. इन डिराइव्ड क्लास वी हैव पब्लिक वॉइड फन डिराइव्ड एंड पब्लिक वॉइड फन. अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो फन नाम है ये यहाँ पे भी है, यानी ये फन नाम का फंक्शन है, right? This exists in derived class as well as it exists in the base class. Now when I use an object of derived class and if I call fun, so कौन सा fun call होगा, that is my question. उससे पहले what I will show you is कि if I comment this, यानी derived class के fun को अगर मैं comment कर देता हूँ, right? यहाँ कोई error नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? Because अब इसके पास कोई ambiguity नहीं, ये सीधा सीधा base class का fun function call करेगा. Let us check. ओके, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर इज पहले इन बेस फन. क्यों? बिकॉज ये फन जो है ये सिर्फ बेस क्लास में, डिराइव्ड क्लास को हमने कमेंट कर दिया है तो उसमें कोई फन नहीं है. देयर इज नो फन फंक्शन. देन नेक्स्ट इज फन डिराइव्ड जिसमें इन फन डिराइव्ड कॉल हुआ. फन बेस जिसमें बेस क्लास का फन बेस फंक्शन जो है वो कॉल हुआ, ये वाला, राइट? सो माई ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इट इज एबल टू एक्सेस ऑल द थ्री फंक्शंस. अब मैं डिराइव्ड क्लास में ये फन फंक्शन जो है इसको अनकमेंट कर देता हूँ, राइट? अब सिचुएशन क्या अराइज होगी दैट वेन एवर दिस फन फंक्शन विल बी कॉल्ड, तो कौन सा फन कॉल होगा? बेस वाला कॉल होगा या डिराइव्ड वाला कॉल होगा, राइट? या बेस एंड डिराइव्ड दोनों कॉल होंगे. दैट इज माई क्वेश्चन. कैन यू गाइज आंसर? Rini has answered something. So derived class 1 will be called as it will override function of the base class. Okay, let us check. दोनों कॉल होंगे? दोनों कॉल नहीं होंगे शाश्वत. क्या कॉल हुआ? तो derived class का कॉल हुआ, बेस क्लास का फन जो है वो कॉल नहीं हुआ. क्यों डिराइव्ड क्लास का कॉल हुआ? द रीजन बीइंग, राइट, दिस फंडा या दिस थिंग इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग, राइट, या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट एक बेस या थंब रूल याद रखो, जिसका न्यू उसका फंक्शन कॉल होगा, राइट? अगर उस क्लास में वो फंक्शन नहीं है तो
उसके पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है वो कॉल होगा, राइट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरराइडिंग, राइट. तो फंक्शन ओवरराइडिंग या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, इट इज यानी ये हमने एक पॉलीमॉर्फिज्म देखा था जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या, पॉली एंड मॉर्फ मतलब सेम नेम, राइट, लेकिन डिफरेंट फंक्शनैलिटी. तो यहाँ पर वी हैव सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर. बेस क्लास में भी पब्लिक वॉइड फन है, डिराइव्ड क्लास में भी पब्लिक वॉइड फन है, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट इन योर बेस क्लास and in your derived class, so how would we explain dynamic polymorphism or how will we explain function overriding? So we'll explain it in this way, that whenever right, there is a parent child relationship, and we have a function in the parent class, right, which also exists in the derived class, right. When we have a function in the base class, right, which also exists in the derived class, right, whenever I say function it means function with the same signature. सिग्नेचर का मतलब क्या कि इसका रिटर्न टाइप भी सेम, एक्सेसिबिलिटी भी सेम और फंक्शन का नाम भी सेम एंड पैरामीटर्स होते थे तो वो भी सेम, राइट. सो व्हेनेवर इन अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, whenever a function with the same signature it exists in the base class as well as derived class, and if we create an object of a derived class, right, and if we call that function, we created an object of the derived class and we called that function, then the function of the derived class it will override the function of the base class. ओवरराइड का मतलब क्या कि उसको बाईपास कर देगा, बेस क्लास के फंक्शन को उसको बाजू में रखेगा और खुद सामने आएगा. सो द फंक्शन of the derived class it will override the function of the base class, right. This phenomenon it is called as dynamic polymorphism, or it is also called as runtime polymorphism. It is also called as function overriding, right. ये तीन नाम है इसको, dynamic polymorphism या runtime polymorphism या function ओवरराइडिंग. इनहेरिटेंस में तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद पूरे कंस्ट्रक्टर्स कॉल होते ना, हाँ एकदम बराबर, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट तुम ये फंक्शन नहीं कॉल कर सकते थे. ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कंस्ट्रक्टर्स विल ऑलवेज बी कॉल्ड, ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर्स विल ऑलवेज बी कॉल्ड, लेकिन फंक्शन कोई एक ही कॉल होगा, क्योंकि फंक्शन में आपका बिजनेस लॉजिक होता है, राइट. तो फंक्शन किसका कॉल होगा, जिसका न्यू उसका फंक्शन, राइट. अनदर वे ऑफ डूइंग दिस इज आई हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास एंड आई से बेस b1 इक्वल्स टू न्यू डिराइव्ड. नाउ दिस इज ऑल्सो अलाउड इन जावा यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो इसमें क्या हो रहा है कि your object of base class it is acting on behalf of a derived class, and if you try to do it the other way around, say derived d2 equals to new base, this will give you an error. ये केस में क्या हो रहा है कि parent it is acting on behalf of a child. ये केस में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि child is acting on behalf of a parent, राइट. तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से, कि लेट अस से अपने स्कूल में रिपोर्ट कार्ड लेना है, राइट. हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड अगर मिलता है तो उसमें हमारे पेरेंट्स की सिग्नेचर लगती है, राइट. कई बार कोई स्कूल्स में लगती है. तो वो केस में क्या है कि आवर पेरेंट इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर चाइल्ड, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. लेकिन अगर मम्मी या पापा ऑफिस में एब्सेंट है तो तुम्हारी सिग्नेचर काम करती है क्या, नहीं काम करती. सो चाइल्ड कैन नॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट, राइट. सो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि पेरेंट कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ चाइल्ड, बट चाइल्ड कैनॉट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ पेरेंट, right. This is what you need to remember.
तो दिस इज प्योरली वैलिड, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू सेम. यहाँ पर आई एम सेइंग बेस b1 इज इक्वल टू न्यू डिराइव्ड. नाउ इफ आई ट्राई टू कॉल b1 डॉट फन, कैन यू टेल मी किसका कॉल होगा? कैन यू टेल मी कौन सा फंक्शन कॉल होगा? बेस का कॉल होगा या डिराइव्ड का कॉल होगा? Let's check that out. Again, as I said, जिसका न्यू उसका फंक्शन, जिसका न्यू उसका फंक्शन. तो डिराइव्ड क्लास का न्यू है, इसीलिए डिराइव्ड क्लास का फंक्शन. Right? Now, what I'll do is, I'll have एक public static void test, एक नाम का test1 नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ. Right? And in this, what I'll do is, I'll have an object of base b2 as a parameter. Right? And inside this, what I'll do is, I'll call b2 dot fun. I am just calling b2 dot fun. अब मैं ये जितने भी फंक्शन कॉल्स है इनको कमेंट कर देता हूँ, यानी हम आउटपुट अच्छे से देख पाएंगे. एंड व्हाट आई विल डू इज, आई विल कॉल दिस फंक्शन, आई विल कॉल test1 सबसे पहले विथ d1, एंड आई विल कॉल test1 विथ b1, right? And I will also create an object of simple base class. I will say base b2 equals to new base, and I will call test1 and I will pass b2. Right? This is a very difficult concept to digest, लेकिन एक बार समझ गया तो easy जाएगा. Right? Now have a look at this. Right? What have I done? सी, मैंने एक फंक्शन बनाया स्टैटिक इसलिए कि मुझे वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े. राइट? जिसमें मैं पैरामीटर लेना हूँ एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, बेस b2. राइट? नेक्स्ट व्हाट आई एम डूइंग इज, आई एम क्रिएटिंग फ्यू ऑब्जेक्ट्स, एक बेस b1 इक्वल्स टू न्यू डिराइव्ड, एक डिराइव्ड d1 इक्वल्स टू न्यू डिराइव्ड, राइट, एंड एक बेस b2 इक्वल्स टू न्यू बेस. ये तीनों को ऊपर ले लेता हूँ मैं, सो दैट थिंग्स वुड स्टे. राइट? नाउ व्हेन आई पास d1, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास हो रहा है. वाई? बिकॉज हम लोग डिराइव्ड क्लास भेज रहे हैं. तो दिस बेस ऑब्जेक्ट b2, it will act on behalf of the derived class. I'll remove this. The base b2, this will act on behalf of derived class. क्यों? Because इसमें derived class का object जाएगा, and whenever you call it, so what would be called is the derived class का fun. Right? Whenever I am passing d1, again derived class का object जा रहा है, it will again call derived class का fun. And whenever I am passing b2, so what is happening is कि base class का object है तो base class का object जाएगा. Now let us have a look at it. तो पहले in derived and then in base. Right? I am very sure ये एकदम से समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है. Right? But what is happening is your base का object, it is acting on behalf of derived. Right? तो जो भी ऑब्जेक्ट उसमें पास होगा उसका फंक्शन कॉल होगा. फॉर एग्जाम्पल इनको भी मैं कमेंट कर देता हूँ. राइट? एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल से test1 and I will call new derived.
तो न्यू मतलब क्या, मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, राइट। ये बाकी कमेंटेड है तो और कुछ कॉल नहीं होने वाला, सिर्फ ये कॉल होगा। तो क्या होगा, एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने पास किया, वो ऑब्जेक्ट ये B2 में आ गया, राइट, एंड आई विल बी एबल टू कॉल B2 डॉट फन। तो इन डिराइव्ड फन कॉल होगा, राइट। एंड इंस्टेड ऑफ न्यू डिराइव्ड इफ आई पास न्यू बेस, तो इन बेस फन कॉल होगा। अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट इज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। एक हल्का हल्का समझ में आया? ये वीडियो 3 बार देखो, जब तक वो देखोगे नहीं तब तक वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बिकॉज टुमारो आई विल बी टेकिंग एक छोटा सा, यानी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इसका, राइट। दैट इज व्हाट आई वुड बी आस्किंग यू गाइज टू डू एज वेल। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। ये फंक्शन स्पेशली कैसा वर्क करता है। अगर आप सिर्फ ये फंक्शन देखोगे, सिर्फ ये फंक्शन देखोगे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल होगा, बट दैट इज नॉट द केस। व्हाट इज हैपनिंग इज दिस बेस क्लास इट कैन ऑल्सो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ डिराइव्ड क्लासेस। तो जो फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसमें, उसका फन फंक्शन जो है वो कॉल होगा। क्लियर?